Hello everyone. I welcome you all to the anthropology series that we started. In this direction, we are on lecture 5 and today let's see what we will be doing. Let's take a quick overview. First of all, we will be doing the concepts of evolutionary biology. Now this is very important from exam point of view and also from syllabus point of view because ये जो rules हैं जो लेक्चर 4 और लेक्चर 5 आपको पढ़ाया गया है, जितना भी बायोलॉजिकल पार्ट होगा आपका एंथ्रोपोलॉजी में, ये उसमें बेस की तरह काम करेंगे. If you are not thorough with the concepts that I taught you in lecture 4 and lecture 5, then it will be difficult for you to study the biology part of the syllabus. Okay, so please be thorough with them, grasp them, and learn them. What we will do, we will understand the concepts, then we will make notes of those concepts as we have to write them in the examination. Then we will add some value to the answer so our answers stand out from the other answers. How we will do that? We will do that by adding some examples or diagrams, and then we will see the previous year questions to see whether you are able to answer them or not with your gained knowledge. Okay, now this video is presented to you by me, Pooja Yadav. I am the interview candidate of UPSC CSE 2021 with anthropology optional, and I have also written another mains in 2022 of CSE with anthropology as my optional. Now let me give you a quick introduction of what organic evolution is. Now organic evolution का मतलब होता है जब कोई भी species turns from simple to complex by change in gene frequency. Now always remember, I told you कि हमारे अंदर genes होते हैं और उसके ऊपर हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन that how body will form, how body will function, ये सब embedded होती है. Now अगर वो चेंज जीन फ्रीक्वेंसी में नहीं आया, then that change will not qualify as evolution because it will not pass on to frequent generation. ओके, सो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज का पास होना बहुत जरूरी है टू क्वालिफाई इट एज एन एवोल्यूशन, एंड फॉर दैट चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इज नीडेड. सो दिस इज द very important keyword here that you always have to remember while giving this definition. अब हमें ये कंसेप्ट क्यों पढ़ने हैं? बिकॉज वी नो दैट इवोल्यूशन हैज हैपेंड. अब कैसे हुआ, कौन से स्टेप्स इसमें लगे, कब किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, हम उन्हें कैसे पढ़ेंगे? वी विल स्टडी देम वाया सर्टेन लॉज, ताकि हमारे अंदर कोई भी वेगनेस या कंफ्यूजन ना रहे. जहां भी हम चाहें उन लॉज को लगाकर देखें, और अगर वो चेंज इन लॉज के थ्रू पास हो रहा है, दे आर पासिंग द टेस्ट ऑफ दीज रूल्स, देन इवोल्यूशन हैज हैपेंड. ओके, so let's study those rules or laws. The first is the Dole's rule. Now here is the anthropologist or biologist Dole. What he said कि कोई भी जो इवोल्यूशन होता है वो एकदम से नहीं हो जाता. लाइक हम एज अ ह्यूमन स्पीशीज, पहले कहा गया है कि हमारे और एप के एंसेस्टर्स सेम थे, वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम दैट. तो ये एक दिन में या एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि एंसेस्टर्स का एक बच्चा तो एप निकला और दूसरा बच्चा ह्यूमन. नो, बहुत धीरे धीरे स्लो स्टेप्स में ऐसा हुआ, और हर स्टेप को नेचुरल सिलेक्शन ने प्रिजर्व किया. यानी कि हर वो चेंज जो एनवायरनमेंट में हमें अडेप्ट करने में मदद कर रहा था उसको प्रिजर्व किया गया. हर वो चेंज जो मदद नहीं कर रहा था, हर स्टेप पे उसको एलिमिनेट किया गया. फ्रीक्वेंट जनरेशन में ये चेंजेस पास ऑन हुए. उन चेंजेस में थोड़ी थोड़ी म्यूटेशंस के साथ जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आए, और फाइनली एक ऐसा जीनोम तैयार हुआ जैसा कि आज हमारा है. Okay, so he is saying that there were many small steps in the evolution, and it was not a single step thing, and each step was preserved by natural selection. So he is saying that this, if not impossible, then this is the most improbable thing to happen, that the evolution reverses in that direction. क्योंकि मैंने बताया अगर 100 स्टेप्स में एवोल्यूशन हुआ है तो 100 की 100 स्टेप बिल्कुल वैसे की वैसे वापस जाए, वैसा की वैसा एनवायरनमेंट उल्टा हो, और वो स्पीशीज फिर उस एनवायरनमेंट में उस अडेप्टेशन को रिवर्स करे जो उसने पहले की थी नेचुरल सिलेक्शन के खिलाफ जाकर. तो दिस इज अ वेरी इम्प्रोबेबल थिंग टू हैपन. सो ही सेड दैट इवोल्यूशन इज इरिवर्सिबल. If not irreversible, then it is the most improbable thing to happen.
अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो मोस्ट इम्प्रोबेबल थिंग तो जरूर है. सो ही अवॉइडेड बीइंग एक्सट्रीम एंड ही सेड दैट इट इज द मोस्ट इम्प्रोबेबल थिंग. नाउ what will be the diagram that you will be given? This will be the diagram. So see, old form थी, धीरे धीरे चेंजेस आए और हर चेंज के साथ एक एनवायरनमेंट अटैच्ड है जिसने नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू हर स्टेप को प्रिजर्व किया. अब हर स्टेप का एनवायरनमेंट बिल्कुल रिवर्स हो जाए और वहां पे वो स्पीशीज भी फिर सरवाइव करे, और वो स्पीशीज ना सिर्फ सरवाइव करे बल्कि रिवर्स करे अपने उन चेंजेस को नेचुरल सिलेक्शन के खिलाफ जाकर, दैट इज अ वेरी इम्प्रोबेबल थिंग कि ऐसा हो सकता है यहाँ तक आते आते यूं हो जाए या यूं हो जाए या यहाँ तक आके यूं हो जाए, लेकिन बिल्कुल वापस आना इज द मोस्ट इम्प्रोबेबल थिंग. दैट्स ऑल इन डॉल्स रूल. ओके, ये रूल काफी सिंपल है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. सो स्टे विद मी एंड आई विल मेक श्योर कि आपको ये समझ में आए. ये डायग्राम आप जरूर साइड में इस तरह से, जैसे आपकी आंसर शीट है उस पे आप जब ऐसे डोल्स रूल लिखेंगे तो साइड में आप ये डायग्राम यहाँ पे बना देंगे सो दैट आपको 1 और 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले एंड योर आंसर स्टैंड आउट. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दीज डायग्राम्स दैट आई एम गिविंग यू. ये समझने में भी काम आते हैं और ये आंसर में वैल्यू एडिशन के भी काम आते हैं. नाउ लेट अस प्रोसीड. अब डोल्स रूल is not really immune from the criticism. It was criticized on two bases. First, कि ये आप स्पीशीज पे लगाएंगे, आप एक इंडिविजुअल पे डोल्स रूल नहीं लगा सकते क्योंकि एक इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में कितने ही इवोल्यूशनरी चेंजेस हो जाएंगे, ऑलमोस्ट नन. देयर विल ओनली बी माइक्रो इवोल्यूशन, छोटा मोटा, बट देयर विल बी नो मैक्रो इवोल्यूशन जो एक स्पीशीज को सच में ग्रो करने में हेल्प करता है और हम बता सकते हैं कि एक मार्क्ड डिफरेंस आ गया है ड्यू टू इवोल्यूशन, ये ऑर्गन इतना इवॉल्व हो गया है. वो एक इंडिविजुअल की नहीं, पूरी स्पीशीज में हम बता पाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो इंडिविजुअल पर आप ये रूल नहीं लगा पाएंगे. सेकेंड क्रिटिसिज्म इज रेप्टाइल्स को ऐसा माना गया है दैट दे आर रिटर्निंग टू देयर एंसेस्ट्रल फॉर्म्स. Now, let me tell you थोड़ा सा बैकग्राउंड. रेप्टाइल्स यस रिटर्निंग टू देयर एंसेस्ट्रल फॉर्म्स, लेकिन ये इसलिए हो रहा है because they are trying to adapt to their environment and not because they are just reversing the all evolutionary process or the morphological features that have taken place. Okay, ये रेप्टाइल्स में सिर्फ और सिर्फ अडेप्टेशन की वजह से कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो उनकी एंसेस्ट्रल फॉर्म से मिलते थे, लेकिन ये अभी दावा नहीं किया जा सकता कि दे आर रियली रिवर्सिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. ओके, बट फॉर द टाइम बीइंग ये क्रिटिसिज्म में लिखा जा सकता है. तो अगर डोल्स रूल का आपको आ जाता है कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो आप क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट रूल, Cope's rule. Now here is the guy Cope. He gave a rule. What he said, जैसे लमार्क ने कहा था that during the evolution, every organism has a tendency to increase in size. He said the same. He said evolution means increase in size. If a species is decreasing in size, ऐसा हो ही नहीं सकता. That means it's not evolving. Evolution always means increase in size. Now इसको आप कैसे दिखाएंगे? आपको ये हाथी घोड़े नहीं बनाने हैं, आपको सिंपल इस तरह से बना के ऐसे ग्राफ बनाना है. इस पे आप दिखाएंगे साइज, यहाँ आप दिखाएंगे टाइम एंड हेयर. दैट पहले वो साइज बहुत छोटा था, अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है साइज इज इंक्रीजिंग. दिस इज अकॉर्डिंग टू कोप. ये भी आप साइड में एक पूरी शीट के ऊपर जब आंसर लिखेंगे तो साइड में यहाँ ऐसे ये डायग्राम बना देंगे. ओके, दिस विल एड वैल्यू टू योर आंसर. सो दिस इज सिंपल लमार्किज्म जैसा है. फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट होता है वो अपनी लाइफ टाइम ग्रो करता रहता है, आप न्यूट्रिएंट्स देते रहिए, पानी देते रहिए. अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा तो प्लांट विल ऑलवेज टेंड टू ग्रो इन साइज. सो दैट वाज द एग्जांपल cited by Cope to justify his rule that evolution means increase in size. Okay, नाउ क्रिटिसिज्म तो इसके भी हैं डेफिनेटली, बिकॉज ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया है इन्होंने चीजों को. सो सबसे पहला आता है डायनासोर्स का, कि डायनासोर्स जो पहले के टाइम में थे वो इतने बड़े थे साइज में, तो आज के रेप्टाइल्स इतने छोटे क्यों हैं? एवोल्यूशन अगर हुआ है तो दे वुड हैव इंक्रीज्ड इन साइज एंड दे मस्ट हैव बीन बिगर देन द डायनासोर्स देमसेल्व्स, बट ऐसा नहीं है. ओके, सेकंड इज टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज इज नॉट यूनिवर्सल. वी नो
सबसे बढ़िया एग्जांपल हर्ब्स एंड श्रब्स फ्रॉम बिग ट्रीज। कोई भी बिग ट्रीज होते हैं उन पे हर्ब्स एंड श्रब्स ग्रो कर जाती हैं ऐसे। अब उनका अगर इस ट्री को अगर इवॉल्व ही करना था तो जो नए पार्ट आएंगे उनको और बड़ा करे ना। हर्ब्स एंड श्रब्स तो ट्री से भी बड़ी हो जानी थी, बट ऐसा होता है नहीं। ओके, सो द टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज इज नॉट यूनिवर्सल. Now, many vertebrates have shown progressive decrease in size during a specified period. Okay, so these are the criticism you have to write if you are asked to analyze critically, and you also have to give that diagram no matter what has been asked in context of Cope's rule. You always have to give diagrams to stand your answer out. Okay, now here we have Gauss rule. This is Gauss. As you can see, he is a very sophisticated biologist. Now let's see what he said. Now this is important, please try to understand. He said कि कोई भी दो स्पीशीज हैं A and B, वो सेम नीश ऑक्यूपाई करते हैं. नीश मीन्स आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर द एड्रेस एंड द फूड, यानी कि उनका फूड सेम है और उनका हैबिटेट भी सेम है. मान लो दोनों केव में रहते हैं. अब केव तो देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ केव्स, लेकिन इनकी पॉपुलेशन क्या है, अनलिमिटेड है, क्योंकि बढ़ती जाएगी. ऊपर से दो स्पीशीज की पॉपुलेशन है तो डबल बर्डन आएगा केव्स के ऊपर. अब केव्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक टाइम पे, तो इन दोनों स्पीशीज में क्या होगा, कंपटीशन होगा केव के लिए. प्लस इंसेक्ट्स खाते हैं दोनों, इंसेक्ट्स लिमिटेड है इन नंबर, दोनों खाने लगेंगे, दोनों की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इंसेक्ट्स विल डिक्रीज इन नंबर. तो फूड भी बहुत लिमिटेड है बट देयर पॉपुलेशन इज अनलिमिटेड, तो फूड पे भी दोनों का कंपटीशन होगा. सो दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर फॉर देयर हैबिटेट, मतलब देयर होम एंड देयर फूड. अब these two are the very basic necessities, so they will fight until their death. So there will come competitive exclusion. Here the Darwin's principle of survival of the fittest will work, और इन दोनों में से जो भी ज्यादा फिट होगी वो दूसरी को एलिमिनेट कर देगी टिल द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. दिस इज कॉल्ड competitive exclusion. ओके, जब तक इन दोनों में से कोई एक्सटिंक्ट नहीं हो जाती, ताकि सारी केव्स और सारे इंसेक्ट्स या तो सिर्फ बी अपने लिए रख सके या सिर्फ ए अपने लिए रख सके, दोनों नहीं बांट सकेंगे. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. ओके, बट ही सेड कि जरूरी नहीं है कि एक जो है दूसरे को आउट नंबर ही करे, कि भाई कंपिटिटिव एलिमिनेशन चल रहा है तो यहाँ पे वो उसको एक्सटिंक्ट ही कर दे. जरूरी नहीं है. हो सकता है कि जब मान लीजिए बी भारी पड़ रही है, ए के नंबर कम हो रहे हैं, तो अब ए के ऊपर प्रेशर आएगा इस एनवायरमेंट में अडेप्ट करने का. सो हाउ ही विल अडेप्ट, हाउ द स्पीशीज ए विल अडेप्ट, या तो वो केव छोड़ देगी या वो सेम फूड छोड़ देगी. ओके, ताकि ये केव और फूड बी ले सके और ये दूसरे हैबिटेट और फूड को अडेप्ट करेगी. ऐसे में क्या होगा, उस ट्रॉपिक लेवल पे एक और नीश बनेगा जिसे ए ऑक्यूपाई करेगी. बी अपना केव और इंसेक्ट्स रख लेगी एंड ए फॉर एग्जांपल ट्रीज पे चला जाएगा एंड लेट्स से बीटल्स खा लेगा. ओके, तो फिर इन दोनों का कंपटीशन खत्म हो जाएगा, बिकॉज कंपटीशन का जो वेरी बेसिस है वो खत्म हो चुका है. ओके, तो या तो एलिमिनेट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, या फिर अपना नीश चेंज कर लेगी. नाउ लेट मी टेल यू दिस वाया डायग्राम. देखिए, सबसे पहले ये स्पीशीज ए थी, येलो वाली. ये बीटल्स ये खा रही थी इंसेक्ट्स, ट्रीज के नीचे गिरे हुए भी, स्टेम के भी, सारे पे इसका एक्सेस था. अब क्या होता है, धीरे धीरे स्पीशीज बी आती है जो रेड कलर में है. अब ये रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, लेकिन येलो और रेड तो दो में बट गया, तो इसलिए अब यहाँ पे इनके बीच में कंपटीशन शुरू होता है. एज आई टोल्ड यू, बी मान लीजिए फिटेस्ट है, मान लीजिए इसका साइज बड़ा है, तो ये ए को आउट नंबर कर देती है, या ये ए पे भारी पड़ने लगती है और बी के पास जो है एक्सेस हो जाता है पूरे स्टेम का. अब ए आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल कम हो गई है, तो या तो ये यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी या फिर इसे अडेप्ट करना पड़ेगा किसी और तरीके से. इसे अपना फूड हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, किसी और तरीके के इंसेक्ट्स पे जाके इसे फीड करना होगा, सो दैट ये एक बी के साथ कंपटीशन में ना आए. ओके, otherwise it will disappear, extinct. Now competitive exclusion. देखिए, अब इतने सारे लोग हैं, खाना सिर्फ इतना सा है, तो क्या हुआ, इनके बीच में कंपटीशन होगा. जस्ट लाइक सीट इतनी सी होती है, कैंडिडेट इतने सारे होते हैं यूपीएससी में, तो इनके बीच में
कंपटीशन होता है। तो यहाँ भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। जो सबसे ज्यादा फिट है वो प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज पार करके और इस वाले फूड को खा लेते हैं। ओके, यूपीएससी की सीट्स ले लेते हैं मतलब। सो दिस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन सेज कि दो स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए जो compete कर रही है कैन नॉट को एग्जिस्ट, क्योंकि अब अगर इसको ये फूड खाना है तो इसको इन सब से छुटकारा पाना होगा, तो हो सकता है ये इन सबको मार भी दे। So they cannot coexist. या तो फूड बहुत ज्यादा हो, but that is not the case. Darwin told us that resources are limited, and that principle of his has unfortunately come out to be true, that resources, yes, are limited. Now let's see this example. अब ये स्पैरोज आप लगा लीजिए, ये ट्री है, इसी ट्री के ऊपर इनको अपना घर बनाना है यानी रहना है। अब अगर सभी इस पोर्शन में रहने की कोशिश करेंगे तो इनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। सो व्हाट इट डिड, इतने पोर्शन में ये रहती है, इतने पोर्शन में ये, इतने में ये, इतने में ये और इतने में ये। सो इससे क्या होता है, हमें दिख रहा है कि इन्होंने अडेप्ट कर लिया है अपने आप को अकॉर्डिंग टू द कम्पिटिटिव एनवायरमेंट, ताकि ये एलिमिनेट ना हो जाए। ओके, तो इन्होंने अपना हैबिटेट और फूड जो है पार्टीशन कर लिया है टू अवॉइड कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। दिस इज गॉस रूल। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, एंड दिस इज द वन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर क्वेश्चंस। सो प्लीज प्लीज बी थॉरो विद इट। ओके, सो सीधी सी बात है कि अगर सेम फूड और सेम रहने की जगह होगी तो कंपटीशन होगा। कंपटीशन में या तो वो उसे एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट अगर नहीं होना है तो बी को, ए को जो है जाके कोई और फूड और शेल्टर ढूंढना होगा, जैसे इन्होंने आपस में पार्टीशनिंग कर ली है। अगर ये थोड़े से स्पेस के लिए सभी लड़ते तो दिक्कत हो जाती और इनमें कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन आ जाता, बट ऐसा हुआ नहीं बिकॉज दे अडेप्टेड। ओके, so now let's move on. Here we have very important concepts, parallelism and convergence. अब ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, लेट मी टेल यू। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स किसी भी बॉडी के विजिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे हैंड्स, लेग्स, फेस, आईज, नोज। सो दीज आर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, अब पैरेललिज्म एंड कन्वर्जेंस जो है दो ऑर्गेनिजम्स के क्लोज मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में बात करता है। लेट्स सी हाउ। अब पैरेललिज्म है, पैरेललिज्म कहते हैं, ये कंसेप्ट कहता है कि जब हमें किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स के किन्हीं भी दो ऑर्गन्स में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि उनका सेम एंसेस्टर रहा है। ओके, नाउ दिस इज अ होमोलॉगस प्रोसेस। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस, इफ यू रिमेम्बर हमने 10th में पढ़े थे। देयर इज होमोलॉगस प्रोसेस जहाँ पे रियल बायोलॉजिकल सिमिलैरिटी होती है क्योंकि एंसेस्टर सेम होते हैं। ओके, देन देर इज एनालॉगस प्रोसेस, उसमें क्या होता है, सिर्फ अडेप्टेशन सिमिलर एनवायरनमेंट के लिए की है, इसलिए सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आ गए हैं। एंसेस्टर्स से इन दोनों स्पीशीज का, सेम एंसेस्टर्स से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ये होमोलॉगस प्रोसेस है बिकॉज द एंसेस्टर वाज कॉमन। नाउ दे शो सिमिलैरिटी इन देयर बायोलॉजिकल फीचर क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप सेम है, क्योंकि एक एंसेस्टर था उससे जो जीन्स आए वही दोनों में है, तो इनका जीन सेम है। और जब जीन सेम होगा तो जीन्स के ऊपर ये चीज एनकोडेड होती है कि हमारी बॉडी कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी। तो अगर ये चीज एनकोडेड है और जीन सेम है तो बॉडी बिल्कुल सेम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स दिखाएगी। लेकिन इवोल्यूशन के साथ दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एनवायरनमेंट में इवोल्व होते गए और कुछ इनमें डिफरेंसेस आ गए और दोनों डिफरेंट स्पीशीज बन गई, लेकिन इनमें अभी भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं क्योंकि ये सेम एंसेस्टर से आई हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। कॉमन एंसेस्टर है कोई प्रोटो प्राइमेट, कोई एक प्राइमेट जो बहुत पहले एग्जिस्ट करता था, उससे आए प्रोसीमियन, प्रोसीमियन से आए मंकी, मंकी से आए एप और एप से आए मैन। इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर है प्रोटोप्राइमेट। दैट्स वाई इनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो बहुत सिमिलर होंगे। अब जैसे जो रेड वाली बोन है वो तीनों में है, व्हाइट वाली तीनों में है, येलो वाली भी तीनों में है। बस क्या हुआ है कि इवोल्यूशन के दौरान अलग अलग तरीके की मॉडिफिकेशन हो गई है उस ऑर्गन में, बट जो बेसिक बनावट है वो अभी भी सेम है। सो लेट्स से दिस इज द हैंड ऑफ अ ह्यूमन, दिस इज द हैंड ऑफ अ गोरिल्ला, नकल वॉकर, जो इस तरह से मुट्ठी बंद करके आगे हाथ रख के चलता है, एंड दिस इज द हैंड ऑफ अ एप।
सो एप से ह्यूमन आया है ये हमें इसलिए भी पता चलता है क्योंकि उसी प्रकार की हड्डी की बार बार मॉडिफिकेशन होके ही हमारे हैंड्स इवॉल्व हुए हैं। ओके, सो दिस वाज पैरेललिज्म। नाउ कन्वर्जेंस इसका उल्टा है। कन्वर्जेंस कहता है कि अगर किसी के बीच में सिमिलैरिटीज हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, देन दोज आर नॉट बिकॉज कि उनका एक एंसेस्टर कॉमन था। ये इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों सिमिलर एनवायरनमेंट में रहती हैं। अब उस एनवायरनमेंट की कुछ डिमांड होती है, बेसिक डिमांड। अब वो डिमांड सभी को अडेप्ट करनी, सभी को मीट करनी होती है टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट। उसके लिए क्या करना होता है? अडेप्ट करना होता है। तो अब एनवायरनमेंट सेम है इसलिए अडेप्टेशन भी सेम होगी, इसलिए सिमिलर तरीके के ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे और हमें देखने में लगेगा कि इनका कोई कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई सेड कि सेम एनवायरनमेंट है तो उसकी कुछ नीड्स हैं, एनवायरनमेंट की नीड्स हैं, वो अडेप्टेशन के थ्रू पूरी होंगी, उसके लिए एक नया ऑर्गन आएगा। अब क्योंकि एनवायरनमेंट सेम है, उसकी नीड्स सेम है, तो हर ऑर्गेनिज्म को वो ऑर्गन चाहिए होगा किसी ना किसी मॉडिफाइड फॉर्म में। अब किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स के पास वो सेम दिखने वाला ऑर्गन है, दैट डज नॉट मीन दैट दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। दैट कैन बी एन एनालॉगस प्रोसेस वेयर ओनली बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट सिमिलर ऑर्गन्स हैव डेवलप्ड। ओके, अब इसका आप एग्जांपल देखिए, बैट एंड बर्ड्स। बैट्स के पास भी विंग्स होते हैं, बर्ड के पास भी विंग्स होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दैट दे हैड अ कॉमन एंसेस्टर दैट हैड विंग्स, कि भाई ये कॉमन एंसेस्टर था, उसके पास विंग्स थे, विंग्स की थोड़ी मॉडिफिकेशन हो गई है और दो स्पीशीज बन गई है, बैट्स की और बर्ड की। नो, सेम एरियल एनवायरनमेंट। बर्ड भी एयर में रहता है, बैट भी एयर में रहता है। अब एयर में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उड़ना पड़ेगा। उड़ने के लिए व्हाट यू नीड? यू नीड पंख, आपको विंग्स चाहिए होंगे। तो आपको क्योंकि विंग्स चाहिए इसलिए विंग्स डेवलप हुए एज एन अडेप्टेशन टू द एरियल एनवायरनमेंट। बर्ड के एंसेस्टर थे एव्स, उनसे बर्ड्स आए, और बैट के एंसेस्टर्स थे मैमल्स। ये जो बी एंसेस्टर है इट इज सम काइंड ऑफ मैमल, और उनसे बैट आए और विंग्स उनमें आई बिकॉज ऑफ एरियल एनवायरनमेंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड। पैरेललिज्म में होता है बिकॉज सेम कॉमन एंसेस्टर था इसलिए सेम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। कन्वर्जेंस में होता है कि एक कॉमन एनवायरनमेंट है जिसकी कॉमन नीड्स हैं, उसके लिए कॉमन ऑर्गन्स जो है प्राणियों के अंदर आ रहे हैं, दैट इज कन्वर्जेंस। ओके, सो दैट इज होमोलोगस एंड दिस इज एनालोगस प्रोसेस। ओके, वहां पे एनवायरनमेंट का ज्यादा रोल नहीं है, यहाँ पे एनवायरनमेंट इज द डोमिनेंट फैक्टर। वहां पे रियल बायोलॉजिकल सेंस पे सिमिलैरिटी बेस्ड होती है, यहाँ पे बहुत ही सुपरफिशियल सिमिलैरिटी होती है। वहां पे जेनेटिक मेकअप भी सेम होता है, यहाँ पे सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स सेम होते हैं। तो अगर पैरेललिज्म और कन्वर्जेंस में आपसे डिफरेंस पूछे जाएं तो इन्हीं नोट्स के अंदर वो भी हैं। यू हैव टू वर्क देम आउट योरसेल्फ बिकॉज आई डोंट वांट टू स्पून फीड यू, because that way your mind will stop the innovation. Okay, so try to learn all this and then answer the questions that have been asked. अब क्या होता है? Parallelism and convergence, these two are very useful topics, I've told you. But हमेशा हर organism के अंदर कोई जो organ है वो either because of parallelism है या either because of convergence है, हम ये हमेशा नहीं बता सकते हैं। It is impossible always to distinguish it in parallelism or convergence in all the organisms. We have an example, जैसे there are rods in nocturnal vertebrates। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि वो रोड्स डार्क लाइट में देखने के काम आती हैं, तो हो सकता है जितने भी नॉक्टर्नल हो इसलिए उनकी आंखों में रोड हो, या इसलिए भी हो सकता है कि वर्टिब्रेट्स की जो आईज हैं उनमें ऑलरेडी रोड्स होती हैं, तो वो डाउन द जेनरेशन अडेप्टेशन के ये इवोल्यूशन के दौरान इनके अंदर भी आईज में रोड्स आ गई। अब ये कन्वर्जेंस की वजह से भी हो सकता है, पैरेललिज्म की वजह से भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, बट वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट वन। ये इस चीज की कमजोरी है, इस कंसेप्ट की कमजोरी है, बट नॉनदलेस parallelism and convergence are two different processes that are useful for understanding of evolutionary process in right direction. ये आपका हमेशा कंक्लूजन होगा। ओके, आपसे अगर कोई इसका क्रिटिसिज्म पूछेगा तो आप ये लिखेंगे। ओके,
So we have, I think we are thorough with parallelism and convergence. So let's move on. We have next topic as adaptive radiation. Now when species or their populations spread in new ecological niche, they adjust with it, और फिर प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है, उसको अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं. गोस कहता है अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से आती है न्यू स्पीशीज. नाउ लेट मी टेल यू, इफ यू रिमेंबर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल दिया था बीटल्स का कि एक पॉपुलेशन यहाँ है एक यहाँ है, इधर मड है, इधर क्या थी, ग्रास थी, और इधर यहाँ वाटर है, और ये वाटर को क्रॉस नहीं कर सकते लेकिन कुछ इधर आ जाते हैं. धीरे धीरे अडेप्टेशन के बाद दो डिफरेंट बीटल स्पीशीज बनती हैं विच आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस विद देमसेल्व्स. ओके, ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी कि दो स्पीशीज बन गई हैं एक स्पीशीज से. सो अडेप्टिव रेडिएशन बेसिकली इसी को कहते हैं कि यहाँ पे जो था रिसोर्सेज कम थे, गलती से नदी पार करके किसी नेचुरल कैलेमिटी के दौरान इधर बीटल्स आ जाते हैं, वो इधर की इवोल्यूशनरी जो अडेप्टेशन है उसे अडेप्ट करने लगते हैं, वो ग्रास में अडेप्ट हो जाते हैं, ये मड में अडेप्टेड रहते हैं, और धीरे धीरे इनका फूड और शेल्टर क्योंकि चेंज हो गया है तो इनकी जो इवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस हैं वो भी इनके एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाती हैं और अलग स्पीशीज बन जाती है. दैट्स व्हाट गॉस इज सेइंग कि न्यू स्पीशीज बन जाती है. ओके, that's why I am repeatedly saying that you have to do the lecture 4 before you come to lecture 5, otherwise it will be very difficult for you to understand these concepts. अगर आपने फोर्थ लेक्चर कर लिया है बहुत अच्छे से, if you have grasped the concepts, then it will be very like smooth for you to understand these concepts. Okay, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका. टेरेस्ट्रियल लाइफ, एप, देखिए जो हमारे एंसेस्टर थे वो एक्चुअली ट्रीज पे रहते थे. ओके, बट क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आया जब बहुत ज्यादा बारिश और फ्लड की वजह से ट्रीज खत्म होने लगे. तो वो उन्होंने क्या किया, वो टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल अकोमोडेट वो अडेप्ट करने लगे. टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल, वो जमीन पे रहने लगे रादर देन ट्रीज. अब क्योंकि वो जमीन पे रहने लगे तो उन्हें चलने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स चाहिए थे. ट्रीज पे तो क्या था, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाना था, लेकिन यहाँ पे चलना है तो पैरों की ज्यादा जरूरत है. तो यहाँ पे क्या हुआ, एप में इवोल्यूशनरी चेंजेस आए. जब एप में इवोल्यूशनरी चेंजेस आए तो यहाँ से एक ब्रांच निकली जिससे ह्यूमंस डेवलप हुए. अब क्या हम जाके पेड़ पे रह सकते हैं? नो, दैट इज द लीस्ट प्रोबेबल थिंग टू हैपन. सो डोल्स रूल भी यहाँ से आता है, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं डोल्स रूल का भी, और हम कह सकते हैं कि एक नई स्पीशीज बनी ह्यूमंस. क्यों? क्योंकि इन्होंने पेड़ की बजाय टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म पे अडेप्ट किया. एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन कि एक डिफरेंट एनवायरमेंट में अडेप्ट किया तो एक डिफरेंट स्पीशीज बन गई. ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज मोज़ेक इवोल्यूशन. अब देखिए, डू यू थिंक कि पहले जब एप था, एप ऐसे होता है, ओके, इसके हाथ यहाँ पे, गर्दन यहाँ पे है और इसके पैर यहाँ पे, ओके, तो फिर धीरे धीरे ये ऐसे हुआ होगा, फिर ये ऐसे हुआ होगा, एंड लास्ट में ऐसे ह्यूमन बने थे. ओके, सो दीज आर द स्टेजेस. आपको लगता है कि इन्हीं में धीरे धीरे ब्रेन भी डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे हाथ भी, ऑपोजिबल थम्स डेवलप हो रहे थे, पैर भी धीरे धीरे भागने के लिए डेवलप हो रहे थे, और एकदम से फिर हम ऐसे हो गए. मोस्ट कॉमनली लोगों को ऐसा लगता है, बट नो, दिस इज रॉन्ग. ऐसा नहीं हुआ था. व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि जब ये वाली स्टेज थी, जब इस तरह से चलते थे तो इस तरह से चलने में बहुत दिक्कत होती थी. ओके, तो पहले लेग्स डेवलप्ड, ब्रेन अभी भी उतना ही है. ओके, धीरे 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 करके लेग्स डेवलप हुए. ब्रेन का साइज में छोटा दिखा देती हूँ. लेग्स डेवलप हुए और हमारे हैंड्स क्या हुए, फ्री हो गए फ्रॉम द पर्पज ऑफ लोकोमोशन, यानी कि अब हमें चलने के लिए हाथों की जरूरत नहीं थी और लेग्स वर सफिशिएंट. अब क्योंकि हमारे हाथ फ्री हो गए तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो हम अपराइट खड़े होकर दूर तक देख सकते हैं, शिकार में मदद होगी. दूसरा, क्योंकि हमारे हाथ फ्री हैं, हम चलते चलते भी टूल्स का यूज कर सकते हैं. इसका मतलब वी नीड मोर सोफेस्टिकेटेड टूल्स टू हंट डाउन बिगर एनिमल्स बिकॉज नाउ वी आर केपेबल ऑफ इट. अब टूल्स चाहिए लेकिन दिमाग छोटा सा है. अब टूल्स के लिए हमेशा याद रखिए प्लानिंग चाहिए होगी, बट दिमाग तो छोटा सा, दिमाग ने सीखा ही नहीं है प्लानिंग करना. प्लानिंग के लिए दिमाग को नए न्यूरल नेटवर्क बनाने होंगे. ओके,
अब न्यूरल नेटवर्क के लिए चाहिए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? मीट चाहिए। मीट कहाँ से आएगा? हंट करना पड़ेगा। हंट कैसे करेंगे? टूल्स से करेंगे। ओके, तो जब हम अपने दोनों पैरों पे खड़े हो गए, उसके बाद हमारे दिमाग ने प्लानिंग करनी शुरू की। प्लानिंग की वजह से न्यूरल नेटवर्क बढ़ने लगा। न्यूरल नेटवर्क जब बढ़ा और न्यूट्रिशन की जरूरत हुई, तो हमने हंट करना शुरू किया और हमने ज्यादा सोफेस्टिकेटेड टूल्स बनाए, जिससे हम और ज्यादा बड़े एनिमल्स को मार सकें। इसकी वजह से और ज्यादा न्यूरल नेटवर्क डेवलप हुए और फिर आखिर में हमारा शरीर ऐसा हुआ कि our brain size today is the largest one in the animal kingdom proportional to the body size। तो इसका मतलब ये है कोई ऐसा टाइम आया होगा जब हमारा ब्रेन हमारी बाकी बॉडी के मुकाबले ज्यादा तेजी से इवॉल्व हुआ होगा। और ये कब हुआ? एज आई टोल्ड यू, जब हम बाइपेडल बन चुके थे। ओके, तो सबसे पहले पैर डेवलप हुए, फिर उसके बाद अलग एरा आया जिसमें हम बाइपेडल हो चुके थे, फिर उसके बाद एक एरा लगा हमारा ब्रेन डेवलप होने में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू हियर। अब देखिए, जब आप पढ़ेंगे यू विल सी कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, जो होमो इरेक्टस, मतलब जो सीधे नहीं चल पाते थे। ओके, वो थोड़ा घिसट घिसट के चलते थे। इसके बाद आए थे होमो हैबिलिस, उसके बाद आए थे होमो इरेक्टस। ना, होमो इरेक्टस वो स्टेज थी ह्यूमन एवोल्यूशन की जब वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया था। ओके, अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस में लेग्स बहुत तेजी से डेवलप हुए थे। उसके बाद जब होमो हैबिलिस आया था इवॉल्व होके कुछ 100 सालों बाद, उस टाइम पे ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप हुआ था। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि ब्रेन, लेग, हैंड सब कुछ धीरे 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 इवॉल्व होता जा रहा है, ऐसा नहीं था। पहले लेग्स डेवलप हुए, फिर ब्रेन डेवलप हुए। अब आज के टाइम पे हम क्योंकि ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बॉडी का कम इस्तेमाल करते हैं, तो आगे जाके ऐसा ही होगा दैट ब्रेन साइज विल इवॉल्व। Brain will evolve faster than our body because we are taking less and less use of our body because of the use of machines. Okay, so this is mosaic evolution. I hope you understood it. Now come on, let's see some previous year questions. First one is write a note on adaptive radiation. Yes, you can do this. I've told you. Mosaic evolution, yes. I've given two examples. You can give them. Various laws of evolutionary biology, yes. Here, what you have to do, you have to tell the basic principle of Dole's rule, Gauss rule, and जितना जो तीसरा बताया था वो भी। और डोल्स रूल अलग से पूछ के एग्जाम्पल मांगा है, तो आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ ऑल द रूल्स। ओके, अब इन पे कोई भी क्वेश्चन आता है, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। अब जैसे पैरेललिज्म वर्सेस कन्वर्जेंस डिफरेंस पूछ ले एंड यू टेल मी कि मैम आपने ये तो कराया ही नहीं अलग से, तो ये मैंने करा दिया है, बस मैंने एक्सप्लिसिटली बताया नहीं। आई हैव नॉट स्पून फेड यू। ओके, आप अगर पीछे जाके नोट्स में पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे, आप खुद ही 5 डिफरेंसेस आराम से स्पॉट कर पाएंगे और लिख पाएंगे। ओके, व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट, यू हैव टू रिलीजियसली डू दिस नोट्स एंड please do these diagrams. I have made them for you with a lot of research, and these will add value to your answer. So I hope you enjoyed the lecture. Do tell me if you have any doubt in the comment section, and I will try to revert back, okay, in the next video. Keep writing answers because that's the only way to improve your writing skills, and the writing skills are the only thing that will get fetch you marks in your examination. Okay. So thank you for staying tuned with me. Hope to see you in the next lecture. Bye.